Hi students, good evening. Today I am going to start issue of a shares. On that I am going to start allotment of shares. So in the previous lecture I have finished what is a method for issue of shares, then capital structures, then allotment essential for allotment, valid condition for allotment of shares. And students, today I am going to start what is the procedure for issue of a shares, means allotment of shares. So procedure for allotment of shares or issue of a shares. Allotment means what? Issue of a shares. So allotment of share means distributing shares to those applicant who have submitted the return application along with the application money. So previous lecture we have finished that thing. Means what happened? First of all, company prepared the prospectus and this prospectus issued to the public, and public read the prospectus, go through the prospectus. If they are interested, they fill the application form. Along with the application form, they submit the application money with the company bankers. This person is called the applicant. That applicant, that applicant who have paid the application money along with the application form, that applicant will be eligible for the issue of the shares, means what? Allotment of shares. So allotment means what? Issue of share, distributing the shares to the person who have applied for the shares. ठीक है बच्चों, तो अभी हम प्रोसीजर देखते हैं. सो फर्स्ट प्रोसीजर अलॉटमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी. सो हमने पहले जो पढ़ा था बच्चों, इसेंशियल कंडीशन थे, मतलब वैलिड कंडीशन थे. मीन्स वो कंडीशन जो है वो कंडीशन एज दो टाइप के थे, सैलरी कंडीशन एंड जनरल कंडीशन. दिस कंडीशन इज अ स्ट्रेंथ द एक्ट. सो उसी कंडीशन, उसी प्रोसीजर को, सॉरी उसी कंडीशन को, उसी जो इसेंशियल कंडीशन है उसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे यहाँ पे. दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर्स. ठीक है. सो पहला प्रोसीजर उसका अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी. ठीक है. व्हाइल वी अलॉट द शेयर टू द पब्लिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रोसीजर दैट अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी. ठीक है. एज कंपनी रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कंपनी आपसे एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करती है बच्चों, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पे मीन्स जब आपने एप्लीकेशन किया तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. व्हेन यू अप्लाई फॉर द शेयर, दैट मीन्स यू हैव सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स. सो द सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स हैविंग द थ्री टाइप्स: पार सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब. Par subscribe means what? Equal. Means application and subscribe share. Application and issue both are same. Means whatever share you have issued, equal number of application are to be received from public. This calls a par subscribe. And lower means under subscribe, in that subscribe shares means application for share lower than issue of shares. कंपनी जितना शेयर इशू करे उससे कम आपने एप्लीकेशन किया. सो इन दिस टू केस देयर इज नो नीड टू अपॉइंट द अलॉटमेंट कमिटी. ऐसे दो केस पे अलॉटमेंट कमिटी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ सुप्रीम अथॉरिटी पर्सन हु हैव पावर टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर. हमने कंडीशन में पढ़ा था, एसेंशियल वैलिड कंडीशन में हमने पढ़ा था कि अलॉटमेंट करने का अथॉरिटी किसके पास है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ ऑथराइज्ड पर्सन हु हैव द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. सो इन दिस केस, इन दिस टू केस, par subscription or under subscription, par subscription and under subscription, there is no need to be appointed the allotment committee. So allotment committee is appointed when there is a over subscription. ठीक है. So what is that? Let's see. When the subscription list is closed, जैसे सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होता है, मतलब एप्लीकेशन करने का जो लिस्ट है वो बच्चों क्लोज हो जाता है. आप उसके बाद एप्लीकेशन नहीं कर सकते. द सेक्रेटरी इन्फॉर्म टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मेक द प्रिपरेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. फिर क्या करेगा सेक्रेटरी? जैसे आपका सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हो जाता है, मतलब एप्लीकेशन करने का लिस्ट आपका क्लोज हो जाता है, वहां से आपका एप्लीकेशन क्लोज हो गया, फिर सेक्रेटरी क्या करेगा? एप्लीकेशन का पूरा लिस्ट बनाएगा. उस लिस्ट के बेस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करेगा, बोलेगा भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वी मस्ट बी प्रिपेयर द अलॉटमेंट फॉर शेयर्स. अपने को अलॉटमेंट ऑफ शेयर की तैयारी करनी चाहिए. सो इफ द शेयर्स इज पार सब्सक्राइब, अगर शेयर आपके पार सब्सक्राइब है, मतलब आपका जो सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन, सब्सक्राइब मींस व्हाट? एप्लीकेशन एंड इश्यू ऑफ शेयर. कंपनी जितने शेयर बेचना चाहती है और उसके बदले में जितना आपका एप्लीकेशन है, दोनों क्या इक्वल है. जैसे मैं 1000 शेयर बेचना चाहता हूं, पब्लिक ने भी 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया है. सो इट इज कॉल्ड अ पार सब्सक्राइब. ठीक है. एंड और अंडर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब मींस व्हाट? जितने आप एप्लीकेशन कर रहे हो वो एप्लीकेशन आपका कम है इश्यू की अपेक्षा. समझो मैं 1000 शेयर बेचना चाहता हूं पब्लिक को, लेकिन एप्लीकेशन 800 शेयर के लिए आया, 200 शेयर के लिए कम एप्लीकेशन आया, कम सब्सक्राइब किया 200 शेयर्स. सो इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्राइब. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अलॉट द शेयर्स. सो पार सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अ power to allot the share. Board of director easily can be allot the shares. So problem is arise when
देयर इज अ ओवर सब्सक्राइब. सो बट इफ देयर इज अ इशू इज ओवर सब्सक्राइब, जो शेयर आपने इशू किया है वो ज्यादा एप्लीकेशन आ गए, उसके ओवर सब्सक्राइब होगा आपका इशू. कंपनी जितना शेयर बेचना चाहते है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गए. समझो 1000 शेयर कंपनी बेचना चाहती है लेकिन एप्लीकेशन 1500 शेयर के लिए आया. सो देयर इज अ 500 शेयर इज मोर अप्लाइड. हाँ, एप्लीकेशन फॉर 500 शेयर इज अ एक्सेस, दैट इज अ इश्यू ऑफ शेयर. इश्यू ऑफ शेयर की अपेक्षा मीन्स 500 शेयर का एप्लीकेशन ज्यादा है. तो इस 500 शेयर के साथ करना क्या है? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज टू अपॉइंट अलॉटमेंट कमिटी. उसके लिए फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमिटी बनाता है टू टेक द डिसीजन, मीन्स व्हाट टू डू दैट ओवर सब्सक्रिप्शन और टू डू विद द ओवर सब्सक्रिप्शन. उसके लिए क्या करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलॉटमेंट कमिटी को अपॉइंट करता है टू अंडरटेक द वर्क ऑफ अलॉटमेंट. वो क्या करते हैं? अलॉटमेंट का वर्क फिनिश करते हैं. मीन्स दे डिसाइड whom the shares are allotted, rejected. अभी देखो कंपनी जितना शेयर ऑफर कर रही उतना शेयर ही इशू कर सकती है. जितने शेयर इशू करने के लिए उसने पब्लिक को ऑफर किया है उतने शेयर ही वो इशू कर सकते हैं. उससे ज्यादा भले एप्लीकेशन आ गया, कंपनी कैन नॉट बी इशू दैट ओवर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन को इशू नहीं करेगी. मतलब 500 जो शेयर है उसको रिजेक्ट करना है, लेकिन कैसे रिजेक्ट करेंगे? उसमें से किसको रिजेक्ट करें? So this is a big question in the front of company. So in such a time, the allotment committee will decide the basis of allotment and submit to the report to the board. फिर क्या करेगा allotment committee? means पूरा आपके एप्लीकेशन मतलब सब्सक्रिप्शन लिस्ट को देखेगा और आपका जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसको चेक करेगा. चेक करने के बाद फाइनली वो डिसाइड करेगा और आपके सामने क्या बनेगा? बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, मीन्स हाउ द शेयर्स विल बी अलॉटेड. ये 500 शेयर का करना क्या है? तो उस टाइप पे ऑप्शन होता है प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हो सकता है. ठीक है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कैसा? प्रोपोर्शंस. ठीक है, मतलब हम प्रोपोर्शन बनाएंगे. समझो अभी 1000 शेयर में इशू करना चाहिए, आई वांट टू इशू 1000 शेयर्स बट एप्लीकेशन इज फॉर द 1500 शेयर्स. सो रेशियो वी विल डिसाइड द रेशियो विल बी 2:3. मतलब जिसने 3 शेयर के अप्लाई किया है उसको 2 शेयर्स देंगे. तो जिसने 1500 शेयर के अप्लाई करेगा उसको 1000 शेयर देंगे. तो 500 शेयर का पैसा रिफंड, मतलब सबको कुछ ना कुछ शेयर मिलता है. ये जो मेथड्स है उसका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इसमें क्या आता है? प्रायोरिटी दिखाई जाती है. फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट इशू, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है. प्रेफरेंशियल बेस पे कैसा आता है? जिसने पहले शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको शेयर क्या अप्लाई किया उसको शेयर इशू करेंगे. जो एक्सेस पर्सन है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे. ये बेसिस होता है. और लॉटरी मेथड हम क्या करेंगे? 1000 शेयर का लॉट बनाएंगे. 1500 शेयर का एप्लीकेशन आया तो 500 शेयर का मैंने लॉट बनाया, 200 शेयर का मैंने लॉट बनाया. उसमें से मैं क्या करूंगा? 1000 शेयर का कोई भी सारे शेयर्स को एक साथ मिक्स करूंगा. मिक्स करके उसमें से क्या करूंगा? लॉट को विड्रॉ करूंगा. 1000 शेयर के लॉट को विड्रॉ करूंगा. जो आपके पास लॉट आ गया उसको हम शेयर अलॉट करेंगे. जो हमने सेलेक्ट नहीं हो पाए उसको हम रिजेक्ट करेंगे. समझ में आया बच्चों? सो दिस इज कॉज ऑफ first procedure, that is appointment of allotment committee. So when there is a par subscription, when under subscription, the board of director allot the share. But in the case of over subscription, the company is appoint the board of directors appoint the allotment committee. Allotment committee decide the basis of allotment after finalizing the allotment application, and this decide the basis of allotment and submit the report to the board of director. ठीक है. सो ओवर सब्सक्रिप्शन इसको बोलते हैं. सो ओवर सब्सक्रिप्शन देखो सब्सक्राइब कैपिटल ज्यादा है, इशू कैपिटल कम है. ठीक है. अब पहला प्रोसीजर हो गया. सेकंड प्रोसीजर होल्ड द बोर्ड मीटिंग. अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास वो मीन्स जो रिपोर्ट बना है वो रिपोर्ट आएगा. उसके बेस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग डिसाइड करेगा, डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. So board meeting is held to approve the allotment formula suggested by allotment committee. Allotment committee ने ये तीनों में से कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है? प्रोरेटा अडॉप्ट किया है या प्रेफरेंशियल बेसिस किया है या लॉटरी बेसिस किया है? तो कौन सा बेस पे उसने आपको सजेशन दिया है? ठीक है, उसके बेस पे अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? उस फॉर्मूले को अप्रूव करने के लिए मिस बोर्ड मीटिंग करेगा. और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी इज आल्सो प्रेजेंट व्हेन द अलॉटमेंट कमिटी प्रिपेयर द अलॉटमेंट फॉर्मूला. जब अलॉटमेंट कमिटी क्या करती है? फॉर्मूला बनाए. तो देखो जो कमिटी होती है ना उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, मीन्स पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके बाद सेबी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके बाद रजिस्ट्रार का रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे बहुत सारे पर्सन को मिलकर ये कमिटी बनती है. ठीक है, मीन्स किसी के साथ पार्शियलिटी न हो. पब्लिक का रिप्रेजेंट होता है. पब्लिक का रिप्रेजेंट क्या होता है? शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के फेवर में काम करता है. मतलब सब लोग क्या करते हैं? मतलब किसी के साथ पार्शियलिटी न हो. सो देयर इज अ नंबर ऑफ पर्सन आर इन्वॉल्व. सो इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आल्सो प्रेजेंट व्हेन द अलॉटमेंट कमिटी प्रिपेयर द अलॉटमेंट फॉर्मूला. इफ द शेयर आर लिस्टेड, अगर शेयर्स लिस्टेड है, द फॉर्मूला has to be also approved by authority of the stock exchange. और कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उस टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज का भी पर्सन आएगा. समझे? मीन्स व्हाट? देयर आर द नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन द कमिटी. इन दैट कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड द
decide about the basis of allotment. So second procedure, hold the board meeting to decide the basis of allotment which is finalized by the allotment committee. ठीक है. उसके बाद थर्ड, सॉरी, वंस द अलॉटमेंट फॉर्मूला इज अप्रूव्ड, एक बार अलॉटमेंट फॉर्मूला आपका अप्रूव्ड हो गया कि लॉटरी मेथड से कर रहे हैं या फिर प्रोरेटा मतलब प्रपोर्शन पे देने वाले या फिर प्रेफरेंशियल बेस पे करेंगे, कौन सा बेस पे उन्होंने सेलेक्ट किया है, एक बार सेलेक्ट हो गया, द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड, फिर उसका एप्लीकेशन अलॉटमेंट का लिस्ट बनाए. देखो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट उसका क्या करेंगे, इस तरह से लिस्ट बनाएंगे जिस रजिस्टर में, जिसमें उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड, वो सब पूरा लिस्ट लिखा होगा. दिस कंटेन द नेम ऑफ द अलॉटी, मतलब जिसके नाम पे शेयर अलॉट उसका नाम होगा, द एप्लीकेंट who will be allotted shares, the list has to be signed by the chairman secretary. अब ये जो लिस्ट पूरा बनने के बाद इसमें सेक्रेटरी और चेयरमैन क्या करेगा, साइन करेगा. समझ में बच्चों सेकंड पॉइंट. उसके बाद थर्ड पॉइंट है पास द रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट. फिर क्या होगा, बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में अब क्या होगा, रेजोल्यूशन पास होगा. ठीक है, उस लिस्ट के बेस पर हमने लिस्ट बना दिया, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड, ये हमने डिसीजन ले लिया. तो डिसीजन कैसे पास होता है, रेजोल्यूशन से. रेजोल्यूशन में व्हाट, द डिसीजन पुट टू वोट, वोटिंग से जब डिसीजन लिया, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है लोग क्या करते हैं, शो ऑफ हैंड से क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं. पोल मेथड होता है, बैलेट मेथड होता है, ऐसे डिफरेंट मेथड्स होते हैं वोटिंग के. सो हियर द पीपल्स आर वोटिंग थ्रू द शो ऑफ हैंड. तो जब से वो क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे बाय शो ऑफ हैंड या एनी मेथड ऑफ वोटिंग, दिस बिकम रेजोल्यूशन. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आल्सो पास द रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट द बोर्ड मीटिंग, और रेजोल्यूशन पास टू द अलॉट द शेयर्स. ठीक है, रेजोल्यूशन पास होता है शेयर्स को अलॉटमेंट करने के लिए. द रेजोल्यूशन आल्सो ऑथराइज द सेक्रेटरी टू इशू द लेटर ऑफ अलॉटमेंट. उस रेजोल्यूशन में ये भी लिखा होता है, सबसे पहला डिसीजन होगा, रेजोल्यूशन पास होगा किसके किसके नाम पे शेयर अलॉट होने वाले हैं. उसके साथ साथ फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, उस रेजोल्यूशन में और एक अथॉरिटी देता है, अथॉरिटी पावर देता है सेक्रेटरी को टू इशू द लेटर ऑफ अलॉटमेंट. लेटर ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है, इट इज अ लेटर विच इन्फॉर्म टू द शेयर होल्डर मींस पब्लिक द डैश नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड ऑन यू. एंड लेटर ऑफ रिग्रेट, लेटर ऑफ रिग्रेट जिसके नाम पे शेयर अलॉट नहीं हुए, जैसे 1500 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, 1000 शेयर में बेचना चाहता है, तो उसमें से 500 शेयर का पैसा रिफंड होगा. तो जो शेयर्स है मतलब उनको हम क्या करें, रिटर्न करेंगे. तो जिसके नाम पे शेयर अलॉट हो रहे हैं उसको बच्चों अलॉटमेंट लेटर इश्यू करते हैं, और जिसके शेयर रिजेक्ट होते हैं उसको लेटर ऑफ रिग्रेट, रिग्रेट मतलब सॉरी का लेटर होता है, रिग्रेट करने का लेटर होता है, वो सेक्रेटरी क्या करता है, इशू करता है, और उसकी ऑथराइजेशन इसी रेजोल्यूशन में दी जाती है. सेक्रेटरी हैज टू सेंड द लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू अलॉटी. ठीक है, सेक्रेटरी फिर क्या करेगा, लेटर बनाएगा, बना के वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट किसको सेंड करेगा, अलॉटी को. एंड दोज एप्लीकेंट हु नेम्स अपीयर इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट, जिसका नाम एप्लीकेशन लिस्ट और अलॉटमेंट लिस्ट दोनों में. एंड सेक्रेटरी सेंड द लेटर ऑफ रिग्रेट टू दोज एप्लीकेंट टू हुम द शेयर्स नो शेयर हैव बीन इशूड, जिसके नाम पे शेयर इशूड नहीं हो गए उसको लेटर ऑफ रिग्रेट इशू करेगा. अलॉन्ग विद दिस लेटर ऑफ रिग्रेट द एप्लीकेशन मनी आल्सो बी रिफंडेड. देखो जो रिग्रेट लेटर है, अभी समझो तुमने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था या 500 शेयर के लिए अप्लाई किया, तुम्हारे नाम पे अभी देखो मैंने 1000 शेयर बेचने थे, एप्लीकेशन 1500 शेयर के लिए, तो 1000 शेयर ही मैं बेच सकता हूँ. तो 1000 शेयर को मैं क्या करूंगा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड करूंगा, और 500 शेयर को लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब रिफंड का मतलब सॉरी का लेटर, जिसको हम इन्फॉर्म करेंगे भाई आपके नाम पे शेयर अलॉट नहीं हो रहे. तो उसके साथ साथ जब शेयर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे एप्लीकेशन का पैसा पे करते हैं, तो एप्लीकेशन का पैसा आपको रिफंड भी करना होता है. समझ में? सो पास रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास रेजोल्यूशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड गिव द ऑथोरिटी टू द सेक्रेटरी to send the letter of allotment to whom the shares are allotted, and letter of regret to whom the shares are not allotted. The regret letter sent along with the application money. ठीक है, देखो ये बोर्ड का रेजोल्यूशन का कॉपी है, यहाँ दिखा है रिजॉल्व दैट. जब भी रेजोल्यूशन चालू होता है ना बच्चों, ऐसा रिजॉल्व दैट डैश श्री डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स एंड एग्रीमेंट सेल, ये सब दिया हुआ है. देखो ये सब क्या होता है, मींस दिस आर द रेजोल्यूशन. इतना ध्यान में रखना है, ये रेजोल्यूशन का जो लेटर आपको दिया ना बच्चों यहाँ पे, इसको लिखा कैसे था, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व मतलब टू डिसाइड दैट. फिर इसके आगे सारे इन्फॉर्मेशन डाले जाते हैं जिसके नाम पे शेयर अलॉट हो रहे हैं. फिर कंपनी का नाम होगा, सिग्नेचर होगा, ठीक है, चेयरमैन सेक्रेटरी का सिग्नेचर होगा, एंड लेटर विल बी सेंड. रेजोल्यूशन क्या होगा, पास हो जाएगा. ठीक है, कंपनी विच इशू द शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो कभी कभी देखो लेटर ऑफ अलॉटमेंट किसको सेंड कर रहे हैं, जिसके नाम शेयर अलॉट हो रहे हैं, और रिग्रेट लेटर किसको भेज रहे हैं, जिसका नाम शेयर अलॉट नहीं हो रहे. सो कंपनी सम टाइम इशू द शेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड. आज के टाइम पे जो शेयर्स होते हैं बच्चों सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होते हैं. उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है. कौन सा अकाउंट, डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ शेयर्स. ठीक है, डज नॉट इशू द अलॉटमेंट लेटर. तो अगर आपका पास डीमेट अकाउंट है, ये हैविंग द डीमेट अकाउंट, एंड देन कंपनी इशू द शेयर्स द योर डीमेट अकाउंट, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक मोड.
इन दैट केस कंपनी डज नॉट इशू द लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू द इंडिविजुअल अप्लीकेंट। तो उस टाइम पे आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट शेयर क्या होंगे, क्रिएट होंगे। कंपनी इन्फॉर्म द रिप्रेजेंटेटिव डिपॉजिटरी। देखो आपको डीमेट अकाउंट कहाँ पे ओपन करते हैं, डिपॉजिटरी के पास, ठीक है। डिपॉजिटरी आगे है लेसन आपको, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। सो कंपनी इन्फॉर्म द रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी दैट इज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। इंडिया में दो टाइप के डिपॉजिटरी, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिट सिक्योरिटी लिमिटेड, ऐसे दो टाइप के डिपॉजिटरी है। सबसे पहला एनएसडीएल फॉर्म हुआ था बच्चों, ठीक है। एनएसडीएल 1996 में फॉर्म होता, उसके बाद सेंट्रल लेवल पे नेशनल लेवल पे काम, सेंट्रल लेवल पे काम करने के लिए क्या होता है, सीडीएसएल फॉर्म हो गया। तो ये दो अपने डिपॉजिटरी इंडिया में वर्क कर रहे हैं, जो आपको क्या करते हैं, जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो क्या करना है, कंपनी क्या करेगी, जब भी क्या करेगी, शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में इशू करना चाहती है तो उस टाइम पे शेयर होल्डर को मतलब पब्लिक को अलॉटमेंट लेटर नहीं देगी, वो डायरेक्ट एनएसडीएल जो डिपॉजिटरी आपका है, जहां पे आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया, उस डिपॉजिटरी को क्या करेगी, इन्फॉर्म कर दी कंपनी, एंड डिपॉजिटरी क्या करेगा, आपके अकाउंट में शेयर क्या करेगा, क्रिएट करेगा। सो इट प्रोवाइड द डिपॉजिटरी विद द डिटेल ऑफ एप्लीकेंट हु हैव बीन अलॉटेड शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड एक्सेट्रा। समझ में, ये इन्फॉर्मेशन हमको एनएसडीएल और सीडीएसएल को देना है, डिपॉजिटरी को देना है, एंड अकॉर्डिंग डिपॉजिटरी क्रेडिट द शेयर्स इन योर अकाउंट, ठीक है। सो देखो किस तरह से होता है, जब हम अलॉटमेंट लेटर भेजते हैं, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर। यहाँ पे कंपनी का नाम होगा, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा अलॉटमेंट शेयर्स, इसमें इन्फॉर्म दिया है, देखो दिस इन्फॉर्म दैट डैश डैश योर एप्लीकेशन, देखो अलॉटमेंट एप्लीकेशन के अगेंस्ट में, दोस्तों योर एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे डेटेड दिया हुआ है, वॉज कंसिडर टू बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया गया 15 जून को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी है। यहाँ पे देखो आपने कितने शेयर अप्लाई किए थे, कितने शेयर अलॉट हो गए, आपको कितना अलॉटमेंट में पैसा देना है वो भी लिखा हुआ है। तो इनसे लिखा है यूर काइंडली रिक्वेस्ट टू पे द ऑफर सेड अमाउंट इन द कंपनीज बैंकर, बैंक ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है। बाद में सिग्नेचर कंपनी का सील होगा और सिग्नेचर होगा सेक्रेटरी का। तो ये होता है अलॉटमेंट लेटर, जिसके थ्रू हमको आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि बच्चों कि आपके नाम पे क्या शेयर क्या हो गए, अलॉट हो गए। ये जिसके नाम पे शेयर अलॉट हो रहे उसको लेटर दिया जाता है, और जिसके नाम पे शेयर अलॉट नहीं हो रहे, रिजेक्ट हो रहे, उसको रिग्रेट लेटर भेजा होता है, जिसमें हम लिखते हैं आई एम डायरेक्टर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्फॉर्म दैट योर एप्लीकेशन नंबर डैश डैश ऑफ 100 इक्विटी शेयर्स 710 each as to be the over subscription due to the rejected due to the over subscription of shares। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से रिजेक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे उसका डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है देखो, वी थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन आवर कंपनी एंड काइंडली एक्नॉलेज रिसिप्ट एंड रिफंड ऑर्डर ऑब्लिक, मतलब आपको क्या हो रहा है, रिफंड ऑर्डर आपको मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया जिसके नाम पे शेयर अलॉट कर रहे हैं, और जिसके नाम पे शेयर अलॉट नहीं कर रहे इसको ये लेटर भेजा जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर समझो हम शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज रहे हैं, तो उस टाइम पे डायरेक्ट हम डीमेट फॉर्म में क्या करते हैं, शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कंप्यूटराइज फॉर्म में डायरेक्ट कर सकते हैं, समझ में। तो उस टाइम पे ए लेटर भी भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका फोर्थ पॉइंट है कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी, ठीक है। अभी आपके पास क्या हो गया, अलॉटमेंट का लेटर चला गया, अभी जो लेटर दिखा ना वो लेटर आपके पास चला गया। उसके देखो लास्ट वाले पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा था अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब ये आपको अभी पे करना पड़ेगा, समझ में। जैसे आपके नाम पे शेयर अलॉट करने का लेटर आपके पास पहुंचेगा ना, मतलब शेयर होल्डर के पास जो लेटर पहुंचेगा, तो वो क्या करेंगे, लेटर रीड करेंगे, उसके बाद ये पैसा उनको पे करना है, ठीक है। उसको होता है अलॉटमेंट मनी, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट, द लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेट द मनी टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो इस अलॉटमेंट लेटर में लिखा होता है कि अलॉटमेंट एप्लीकेंट ने कितने शेयर्स अलॉटमेंट का पे करना है, कितना अमाउंट अलॉटमेंट का पे करना है, वो अलॉटमेंट लेटर में लिखा होता है। द मनी हैज टू बी पेड इन द बैंक स्पेसिफाइड बाय द कंपनी विद द स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब जो आपको डिसाइडेड टाइम दिया है, फिक्स टाइम होता है, स्टिपुलेटेड टाइम डिसाइडेड टाइम, जो आपने 2 महीने का 1 महीने का जो भी आपको टाइम दिया है, वो टाइम के अंदर आपको क्या करना है, वो पैसा कंपनी के बैंक में जमा करना है, डिपॉजिट करना है, ठीक है। कंपनी के बैंक में जाके पैसा आपको डिपॉजिट करना है, स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। फॉर ऑल पब्लिकेशन राइट इशू फ्रॉम जनवरी 2016 ASBA इज मैंडेटरी। ASBA मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, मतलब कैसा आता है बच्चों, ये चीज होता है फ्रॉम 2016 जनवरी 2016 ऐसा कर दिया है कि जैसे आप एप्लीकेशन का पैसा करते हो ना, कंपनी के बैंक में डिपॉजिट एप्लीकेशन टाइम पे एप्लीकेशन में जमा करते हो, देखो एप्लीकेशन का हमने बताया था, तो उस टाइम पे जब एप्लीकेशन कंपनी के बैंक में आप जमा करते हो तो आपका पैसा क्या था, एप्लीकेशन वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, मतलब कंपनी वो पैसा यूज नहीं कर सकती, समझ में। वो पैसा जब तक आपके नाम पे शेयर अलॉट नहीं होते तब तक वो कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन का पैसा आपका स्टार्ट नहीं कर मतलब यूज नहीं कर पाएगी, इट इज अ ब्लॉक अमाउंट, ठीक है। इट इज कॉल्ड ASBA, ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। सो कंपनी शुड बी कलेक्ट द अलॉटमेंट मनी एंड द अलॉटी शुड बी डिपॉजिट दिस मनी इनटू द कंपनी बैंकर्स इन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ठीक है।
उसके बाद फिफ्थ है अरेंजमेंट रिलेटिंग द लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन। देखो अभी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जैसे अभी आपके नाम पे शेयर अलॉट हो गए, आप चाहे तो शेयर्स को रिनाउंसिएशन कर सकते हो, मतलब रीसेल कर सकते हो। कंपनी, समझो आपने कंपनी में 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने आपको 500 शेयर अलॉट किए, बराबर, आप चाहे तो उसमें से 200 शेयर किसी और को बेच सकते हो, या पूरे के पूरे 500 शेयर भी बेच सकते हो। इट्स कॉल्ड रिनाउंसिएशन। तो अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो कंपनी उसके अरेंजमेंट करती है। सो कंपनी डू अरेंजमेंट रिलेटिंग द लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन एंड applicant who has been allotted the shares can be renounce the shares in the favor of other person। वो चाहे तो उस शेयर्स दूसरे पर्सन को भी बेच सकती है, ठीक है। द अप्लीकेंट हैज टू फिल अप अ फॉर्म फॉर द रिनाउंसिएशन। उसके लिए अप्लीकेंट को क्या करना है बच्चों, फॉर्म फिलअप करना है रिनाउंसिएशन का, एंड सबमिट विद द ओरिजिनल कॉपी ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट। जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपको दिया ना, उसकी ओरिजिनल कॉपी और रिनाउंसिएशन फॉर्म आपको कंपनी में सबमिट करना है। आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, जैसे फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सेक्रेटरी रखेगा फॉर्म को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूव करेगा। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको अप्रूव किया, सेक्रेटरी इंटर द नेम ऑफ द न्यू अलॉटी इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट। जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिस्ट बना ना, रजिस्टर दिखाया, देखो उस लिस्ट में अभी तुम्हारा नाम कट हो जाएगा, और जिसके नाम पे आपने शेयर्स रिनाउंस किए, थर्ड पर्सन, जो जिस पर्सन के फेवर में आपने शेयर्स दिए है, शेयर रीसेल किए, उसको क्या कर सकते हो आप, वो उसका नाम उस अलॉटमेंट लिस्ट और एप्लीकेशन लिस्ट में उसका नाम एंटर हो जाएगा। योर नेम गेट टू द रिमूव फ्रॉम दी दैट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रजिस्टर, ठीक है। सो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस अरेंजमेंट और रिनाउंसिएशन ऑफ शेयर्स, समझ में आया बच्चों। उसके बाद 6 अरेंजमेंट रिलेटिंग द स्प्लिटिंग ऑफ द अलॉटमेंट लेटर। देखो अभी अलॉटमेंट लेटर को स्प्लिट करना, मतलब जो अलॉटमेंट लेटर है ना, कभी कभी कैसा होता है, अब मेरे नाम पे जितने शेयर अलॉट हो गए, मैं क्या करता हूँ, उस शेयर्स कुछ पार्ट में किसी और के नाम पे भी मैं इंटर करवाना चाहता हूँ। सो उसको बोलते हैं अरेंजमेंट फॉर स्प्लिटिंग। स्प्लिट मतलब डिवाइड करना, स्प्लिट करना ना, उसको डिवाइड कर देना, समझ में आया, 2 पार्ट में ऐसा डिवाइड कर देना। सो देखो समटाइम द अप्लीकेंट हु हैज अलॉटेड द शेयर्स कैन बी रिक्वेस्ट टू स्प्लिट ऑफ द अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट को स्प्लिट करने को बोलता है, मतलब जैसे 500 शेयर मेरे नाम पे अलॉट हो गए, उसमें से 200 शेयर्स किसी और के नाम पे कर दो बोल रहे हैं, उसके फ्रेंड, उसके रिलेटिव के नाम पे, उसके घर में किसी के नाम पे करने को, ट्रांसफर करने को बोल रहा है, तो उस टाइम पे क्या करके अलॉटमेंट को स्प्लिट करा। स्प्लिटिंग मीन्स पुटिंग द शेयर्स इन द वन और मोर नेम, मतलब वही शेयर किसी 2 या 2 के नाम पे पुट करना, 2 या 2 के नाम पे डाल देना। समझो मैंने मेरी वाइफ के नाम पे डाल दिया, सो इट इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग, मतलब 2 के नाम पे शेयर क्या होंगे, अलॉट होंगे। आफ्टर गेटिंग फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ बोर्ड फॉर द स्प्लिटिंग, द सेक्रेटरी हैज एंटर द डिटेल ऑफ स्प्लिट इन द लिस्ट ऑफ अलॉटमेंट। फिर से सेम, जो अलॉटमेंट की लिस्ट थी उसमें क्या स्प्लिट का नाम भी डाल देगा। समझ में, मतलब कैसा, शेयर्स मैं ही खरीद रहा हूँ 500, लेकिन उसमें से 200 शेयर मैंने अपनी वाइफ के नाम पे डाल दिया और 300 शेयर मेरे नाम पे डाल दिए, तो यहाँ पे 2 शेयर सर्टिफिकेट बनेंगे, स्प्लिट इनटू 2, ठीक है। जो आपका शेयर है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। So secretary has to enter the detail in the split in the allotment list and secretary has to issue the split letter। फिर 2 split letter आएंगे अलग अलग, समझ में, दोनों के नाम पे, ठीक है। मीन्स मीन्स जो खुद के नाम पे शेयर है वो उसके नाम पे अलॉटमेंट लेटर आएगा, और जिसके नाम पे आपने स्प्लिट किया उसके नाम पे भी और एक अलॉटमेंट लेटर आपको आएगा, स्प्लिट लेटर बोलते हैं, ठीक है। So arrangement for relating the splitting of allotment letter means what, when the applicant want to issue the shares in the name of the putting the name of the one or more person in the allotment, then they can be application to the company and company board of director approved it. If the board of director approved, then the secretary has to be split the allotment into the two or more form, ठीक है। 7 फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अभी आपके नाम पे अलॉटमेंट लेटर आ गया, आप शेयर्स आपके नाम पे आ गए, तो कंपनी क्या करेगी, जो भी शेयर्स आपके नाम पे अलॉट हो रहे हैं उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, वो एक स्टेटमेंट में बनाते हैं, उसको कहते हैं रिटर्न। रिटर्न मतलब एक स्टेटमेंट, ठीक है, दिख रहा है ये स्टेटमेंट है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है बच्चों, हाँ, ऑनलाइन जो अलॉटमेंट का रिटर्न फाइल करते हैं ना, उसका ये फॉर्मेट है। आप डायरेक्ट अपने ऑनलाइन क्या करते हो, SHO2 फॉर्म जो है, उस फॉर्म में क्या कर सकते हो आप, मीन्स ऑनलाइन अलॉटमेंट का रिटर्न फाइल कर सकते हो। अलॉटमेंट का रिटर्न फाइल करना मतलब अलॉटमेंट का पूरा डिटेल, किस नेम ऑफ द अलॉटी, मतलब जिसके नाम पे शेयर अलॉट करे उसका नाम, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट अलॉटमेंट मनी पेड, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर, सारे डिटेल्स का एड्रेस, नाम, हर चीज डिटेल आपको क्या करना है, इस फॉर्म में फिलअप करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सेक्रेटरी हैज टू फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। किसके पास फाइल करना है, रजिस्टर ऑफ कंपनी विद 30 days ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जैसे आपके नाम पे शेयर अलॉट हो गए, आज से लेकर 30 दिन के अंदर का आपके पास कंपनी के पास टाइम होता है, उसने 30 दिन के अंदर कंपनी क्या करेगी, रिटर्न बनाएगी। रिटर्न मतलब एक स्टेटमेंट बनाएगी जिसमें नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स, अमाउंट ऑफ शेयर्स अलॉटेड,
अमाउंट पेड, ये सब सारा डिटेल्स उसमें फिलअप करके वो क्या करेंगे आरओसी में सबमिट कर। द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंटेन डिटेल ऑफ अलॉटमेंट शेयर्स इंक्लूडिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ अलॉटी, वैल्यू ऑफ शेयर अलॉटेड, अमाउंट पेड, पेबल ऑन ईच शेयर्स, ठीक है, पेड और पेबल ऑन ईच शेयर्स, ये क्या होता है उसके अंदर रिटर्न में लिखा होता है। सो दिस इज द रिटर्न मींस स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों, वो उसको फिल करना होता है और आरओसी में सबमिट करना होता है, ठीक है। उसके बाद अभी शेयर्स आपके नाम पे अलॉट भी हो गए, अभी उसके बाद आपने अलॉटमेंट का भी पैसा पे कर दिया और रिटर्न भी फाइल हो चुका है। फिर उसके बाद क्या होगा मीन्स अभी आगे का फॉर्मेट क्या है मीन्स प्रिपेयर द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इशू द शेयर सर्टिफिकेट। लास्ट प्रोसीजर है, अभी शेयर जैसे आपके नाम पे शेयर अलॉट हो गए, आपने अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया, तो अभी आप क्या होते हैं मीन्स आपके पास एक लीगल प्रूफ होना चाहिए कि आप कंपनी के शेयर्स के ओनर हो, तो उसके लिए कंपनी आपको क्या इशू करती है शेयर सर्टिफिकेट। और कंपनी क्या करती है आपका एक अलग से रजिस्टर बनाती है जिसमें आपका सारा डिटेल मेंटेन करती है, जैसे रजिस्टर है, देखो रजिस्टर फॉर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। Second has to enter the name of the all those applicant who have paid the allotment money in the register of member। देखो जिसने जिसने ये allotment money पे किया ना उसका नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे सब डिटेल वो फिलअप करेगा और किसने किसने allotment का पैसा किया उसका लिस्ट इस रजिस्टर में वो मेंटेन करेगा। तो जहां से आपका नाम इस रजिस्टर में मेंशन हो गया वहां से आप बनते हो रजिस्टर मेंबर। कौन से मेंबर बनते बच्चों? रजिस्टर मेंबर, ठीक है। वहां से आपका रजिस्टर मेंटेन हो गया, वहां से आप उस रजिस्टर मेंबर आपका सारा डिटेल इस रजिस्टर में मेंटेन करेगा। फिर उसके बाद आप लीगल प्रूफ हो, आपके शेयर्स आपके टाइटल में है, उसके लिए आपको क्या है शेयर सर्टिफिकेट। सो सेक्रेटरी आल्सो हैज टू प्रिपेयर द शेयर सर्टिफिकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द ऑल द मेंबर विद इन द 2 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर आपने क्या किया है, जो सेक्रेटरी है उसके बाद क्या करेगा, शेयर्स अभी अलॉट हो गए, आपने अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया। अब अलॉटमेंट का पैसा देने के बाद आपको क्या होता है, एक लीगल प्रूफ मिलता है, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यू आर द शेयर ओनर ऑफ द दैट शेयर्स, ठीक है। आप मेंबर हो कंपनी के, वो आपको कहना है मिस डिक्लेयर करना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक लीगल एविडेंस। लीगल एविडेंस के लिए कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट, सो कंपनी आल्सो हैज प्रिपेयर द शेयर सर्टिफिकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द ऑल द मेंबर्स विद इन 2 months। शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम पे इशू होता है। शेयर सर्टिफिकेट लीगल प्रूफ दैट इट इज अ डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ शेयर्स, मतलब ये आपके टाइटल, आपके ओनरशिप पे शेयर्स है उसका एक लीगल प्रूफ है और 2 महीने के अंदर आपके नाम पे इशू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने शेयर्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब डीमेट अकाउंट में, तो हमने देखा, देखो जिसके नाम पे शेयर अलॉट हो रहा है डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर होता है, जिसके नाम शेयर रिग्रेट लेटर होता है, और जिसको हम क्या करते हैं ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर इशू कर रहे हैं तो उसको कहते हैं डीमेटलाइज फॉर्म बोलते हैं। इन द केस ऑफ शेयर हेल्ड द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डीमेटलाइज फॉर्म, द एंट्री ऑफ द एप्लीकेशन आर मेड बाय डिपॉजिटरी। तो हम डिपॉजिटरी को डिटेल सेंड करते हैं, डिपॉजिटरी पता था एनएसडीएल से डीएस है, उसको हम डिटेल सेंड करते हैं और वो डिपॉजिटरी क्या करता है, उसका एंट्री उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट इशू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट वाले जो शेयर उनको बोलते हैं फिजिकल शेयर बोलते हैं, और जो आपने कंप्यूटराइज फॉर्म में किया उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमेट शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो नाउ डेज मोस्ट ऑफ द शेयर्स हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक ऑन डीमेट फॉर्म, ठीक है बच्चों। सो दिस आर द प्रोसीजर विच आई हैव फिनिश टुडे। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर है, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन हमने पढ़े बच्चों वो सभी क्या है मोस्टली 10 मार्क्स के लिए आते हैं वो क्वेश्चंस, जैसे अभी प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, लीगल कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये सब क्या 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। सो प्रिपेयर फॉर दैट। थैंक यू बच्चों।